चलो बच्चों, आज शुरू करते हैं एक इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानने की और इसको यूज़ करने के तरीके की शुरुआत। ये वर्नियर कैलिपर्स है। वर्नियर कैलिपर्स पियरे वर्नियर ने एक इंस्ट्रूमेंट डिवाइस किया। दिस इंस्ट्रूमेंट इज हैविंग टू स्केल्स अनलाइक टू मीटर स्केल, and it is used to measure any length up to 2 decimal places. So, first let us understand why we need this instrument to measure length. Why this scale is not sufficient to measure length in many cases. एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एक स्टिक है, छोटी सी टूथपिक है और हमें इसकी लेंथ मेज़र करनी है। तो हमने इसके एक एंड को 0 पे रखा और अब हम इसके दूसरे एंड पर मीटर स्केल से इसकी लेंथ मेज़र करेंगे। इसकी लेंथ को हम ज़रा बहुत फोकस होकर ऑब्जर्व करते हैं। नाउ जस्ट ऑब्जर्व द लेंथ ऑफ दिस पिन is coming in between these two divisions. This is 6.123 and this is 6.4 centimeter length. But the length of this stick is between 6.3 and 6.4. Now here comes the problem, whether it is 6.31, 6.32 or it is 6.35. we don't know what is the exact length of this pin. So we need an instrument which can measure the length, this much small length also accurately. So we devised an instrument, screw gauge and vernier calipers. And now today we will understand what is the vernier calipers structure and how we use it. So first we need to understand the difference between the two type of scales. This is main scale, this is our normal scale, meter scale, and this is the single scale which we use to measure a length. But here this instrument is having two types of scale. The two scales are main scale and this scale which is vernier scale, which is called vernier scale. Main scale is a fixed scale and this second scale can move over the main scale. Just observe, vernier scale can move over the main scale. So we have two scales here. See these lines on the vernier scale. We have two scales in this instrument and which makes it more precise and accurate. So now we are going to understand the description, the structure of this instrument, the parts of this instrument and their function, and after that we will understand the principle on which this instrument works. तो पहले हम ये समझ लें कि ये इंस्ट्रूमेंट लेंथ, डायमीटर ऑफ स्फीयर, internal and external diameter of a hollow cylinder and depth of a small tube. This instrument is used to measure these quantities. Length of rod, like if we need to measure length of this rod, then we can use vernier calipers. Then diameter of a sphere. Diameter of a sphere, like this is simple pendulum, bob of simple pendulum. So we use vernier calipers to measure diameter of this spherical shape body.
then many of you have seen this PVC pipe, and if you observe, plumber also uses this vernier calipers and sometimes a screw gauge to measure the diameter of these pipes, where accuracy is important, where precise measurements are needed. The vernier caliper is being used to measure the outer diameter of this pipe or internal diameter of this pipe, right? And if say we want to measure depth of this cap, then here also we can use vernier calipers. So now let us start the structure of the vernier calipers. Now we already know that it has two scales. The fixed scale is known as main scale, and the scale which can move over the main scale is known as vernier scale, right? So this is vernier scale, this is main scale, and now start with the jaws. These two parts of this instrument are known as jaws, inside jaws. Then these two parts of the instrument are known as outside jaws. Any object whose diameter we need to measure is fixed between these two outside jaws. Then there is a strip, metal strip, thin and long. So this strip is used to measure depth of any object. Like if we want to measure the depth of this cap, then we will fit this strip in this cap, and then we will read these two scales here, and then we will calculate the depth of this cap. Similarly, if we want to measure the internal diameter of say a pipe, then we will fix these two jaws between these in this pipe like this, and then we will read the two scales, and that way we will calculate the internal diameter. If we want to measure the external diameter, then we will fix this pipe between these two jaws, and we will read these two scales, and then we will calculate the external diameter of this pipe. तो चलो रिवाइज कर ले, इसके कितने पार्ट्स हैं और उनका यूज क्या क्या है. मेन स्केल जो फिक्स्ड स्केल है, मूवेबल स्केल जिसे हम वर्नियर स्केल कहते हैं, जो ऊपर वाले ये दोनों जॉज हैं इनको हम इनसाइड जॉज कहते हैं, और इनका यूज किसी पाइप के इंटरनल डायमीटर को मेजर करने के लिए होता है. ये दोनों जो नीचे वाले जॉज हैं इनको हम आउटसाइड जॉज कहते हैं, और इनका यूज किसी ऑब्जेक्ट के एक्सटर्नल डायमीटर को मेजर करने के लिए होता है. और उसके बाद हमारे पास है ये थिन स्ट्रिप, इसका यूज किसी ऑब्जेक्ट की डेप्थ को मेजर करने के लिए होता है. ठीक, तो ये डायग्राम और इसके डिफरेंट पार्ट्स और उनका फंक्शन, वीडियो पॉज करके आप इस डायग्राम को नोट करेंगे और डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शंस नोट करेंगे. ये एक क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, दैट राइट what is the use of vernier calipers, or write the use of different parts of the vernier calipers. And there is one more part, screw. This screw, if you lose this screw, then this vernier scale can easily move over the main scale, and once you fixed your object between the lower jaws, then you can tighten this screw, and after tightening this screw, your main vernier scale is fixed. Now it will not move on the main scale, so the reading is fixed here. Safely you will get time to read it correctly.
So this screw is used to fix the vernier scale over the main scale. Position of vernier scale is fixed with help of this screw. So now you should pause the video and you should write the different parts and their uses. और अब आ जाते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर, दैट इज व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स. तो इसको अब हमें ध्यान से समझना पड़ेगा. तो सारे बच्चे फोकस करेंगे वर्नियर कैलिपर्स के स्केल्स पर. ठीक है, मैं स्केल पे फोकस कर रही हूँ और मैंने स्केल को कैमरे के फोकस पे रखकर अब मैं देखो दोनों जॉस को मिला दूंगी. ठीक है, और अब तुम देखो इसको थोड़ा सा और फोकस करते हैं जिससे तुमको ये स्केल्स बहुत अच्छे से विजिबल हो जाए. और अब तुम देखो यहाँ पर कि ये जो, इसको मैं थोड़ा एडजस्ट करूँ, मेन स्केल जो अंदर की ओर दिख रही है ये नीचे की ओर मेन स्केल है और ये जो ऊपर की लाइंस हैं ये वर्नियर स्केल है. जो ऊपर है वो 10 लाइंस हैं. ये जो पहली लाइन है इसको 0 लाइन कहते हैं. इसके बाद तुम काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. तो ये 10 लाइंस वर्नियर स्केल पर है. नीचे भी 10 लाइंस हैं, लेकिन नीचे ये जो 0 और 1 है ये 0 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, और इसके बीच की जो लेंथ है 1 सेंटीमीटर की, ये 10 स्मॉल डिवीजन्स में डिवाइडेड है विद हेल्प ऑफ दीज 10 स्मॉल लाइंस. तो नीचे भी 10 लाइंस हैं और ऊपर भी 10 लाइंस हैं. लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो इन दोनों लाइंस में लेंथ में डिफरेंस है. देखो ये जो 10 लाइंस है ना, ये अगर हम इसको ठीक से दोनों स्केल्स को मिला दें तो ये देखो, अब ध्यान से देखो, ये 9 लाइंस, ये 10 लाइंस ऊपर की, नीचे की सिर्फ 9 लाइंस के इक्वल है. इसको ध्यान से मैं इसको रख देती हूँ, हिलने से इसकी विजिबिलिटी खराब हो रही है. अब देखो ये 10 लाइंस हैं, ठीक है, और ये 10 लाइंस नीचे की 9 लाइंस के बराबर है केवल. देखो है ना, मेन स्केल की नीचे की 10 लाइंस और ऊपर की 10 लाइंस इक्वल लेंथ नहीं कवर कर रही हैं. ऊपर वर्नियर स्केल की 10 लाइंस नीचे मेन स्केल की केवल 9 लाइंस के बराबर लेंथ में स्प्रेड है. तो हम कह सकते हैं कि वर्नियर स्केल की 10 लाइंस मेन स्केल की 9 डिवीजन्स की लेंथ के बराबर है. लिख सकते हैं इसे, आप ध्यान से देखो, ये है मेन स्केल की 10th लाइन, लेकिन वर्नियर स्केल की 10th लाइन यही ख़त्म हो जा रही है. तो हम लिख सकते हैं कि वर्नियर स्केल की 10 लाइंस वर्नियर स्केल की 10 लाइंस मेन स्केल की 9 लाइंस के इक्वल है. पहली लाइन जो है ना, ये पहली लाइन तो दोनों में ही क्या कहलाती है, 0 लाइन. और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइंस पर ही इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइंस, इसकी 9 लाइंस की 10 डिवीजन्स बोलेंगे इनको, ज़्यादा ठीक से बोले तो 10 डिवीजन्स की जो लेंथ है वो मेन स्केल की 9 डिवीज़न की लेंथ के बराबर है. और यही बात अब हम पेपर पे लिखने जा रहे हैं.
तो देखो हम लोगों ने जो देखा उसी को लिख लिया कि वर्नियर स्केल की 10 डिवीजन्स की लेंथ मेन स्केल की 9 डिवीजन की लेंथ के बराबर है इंस्ट्रूमेंट में। अच्छा, ठीक बात है। तो 9 डिवीजन की लेंथ मेन स्केल में कितनी है? एक बार फिर से हम स्केल को देखते हैं। ये जो स्केल है ये हमारी नॉर्मल स्केल की तरह ही तो है। देखो, ठीक है। अब इस स्केल को एक बार फिर ध्यान से देखो। ये जो स्केल है ये हमारी नॉर्मल स्केल की तरह है और ये 10 लाइंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 लाइंस 1 सेंटीमीटर रीड करती हैं। तो अगर 10 लाइंस 1 सेंटीमीटर रीड करती हैं, और या मैं इसको और अच्छे तरह से कहूँ तो मैं कहूँगी ये 10 डिवीजन्स, 1 ये सेकेंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, फोर्थ डिवीज़न, 5 6 7 8 9 10th 10 डिवीजन्स 1 सेंटीमीटर रीड करते हैं। तो 1 लाइन या 1 डिवीज़न कितना रीड करेगी? इसको हम यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं 10 डिवीजन्स ऑन मेन स्केल is equal to 1 centimeter. So 1 division will be equal to, शॉर्ट में ये 1 डिवीजन लिखा, 1 डिवीजन विल बी इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर, राइट? सो एक्चुअली वी वर कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल. So we will write here at the top value of 1 division of main scale. तो value of 1 division of main scale हमने कैलकुलेट कर ली. अब यहाँ पर देखो length of 9 divisions of main scale हमको पता करना है, क्योंकि हम length of 10 division of vernier scale जानना चाहते हैं. तो length of 9 division of main scale must be equal to 9 into length of 1 division of main scale. सही है ना? Length of 1 division of main scale. मेन स्केल को कई बार हम लोग m.s. भी लिख देंगे. तो 9 डिवीजन्स की लेंथ 9 इंटू 1 डिवीजन की लेंथ, और 1 डिवीजन की लेंथ है 0.1 सेंटीमीटर. तो ये वैल्यू यहाँ पर लगते 9 इंटू 0.1 सेंटीमीटर. तो ये हो गया हमारा 0.9 सेंटीमीटर. लेकिन हमने ये क्या निकाला? लेंथ ऑफ 10 डिवीजन्स ऑफ वर्नियर स्केल. तो हम यहाँ पे इसको फिर से रिपीट करते हैं. लेंथ ऑफ 10, शॉर्ट में लिखते हैं डिवीजन ऑफ, और वर्नियर स्केल को भी शॉर्ट में लिख देते हैं. तो उसकी वैल्यू आ गई 0.9 सेंटीमीटर. तो अगर 10 डिवीजन्स की वैल्यू 0.9 है, तो क्या हम वर्नियर स्केल के 1 डिवीजन की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल. फिर से यूनिटरी मेथड यूज करेंगे कि 10 डिवीजन्स की वैल्यू 0.9, तो लेंथ ऑफ 1 division of vernier scale is 0.9/10 सेंटीमीटर. 10 डिवीजन्स की वैल्यू इतनी, तो 1 डिवीजन की वैल्यू 0.9/10, दैट इज 0.09 सेंटीमीटर. अब तुम सोचोगे कि हमने एक मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू और वर्नियर स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू क्यों निकाली? उसकी वजह है प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स.
तो प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स पहले समझते हैं, फिर इन दोनों वैल्यूज का यूज करके हम वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट कैलकुलेट करेंगे। तो अब ध्यान से प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स समझेंगे। इट्स डिफरेंस ऑफ value of one division of main scale and value of one division of vernier scale which remains constant for a vernier calipers। फिर ध्यान से सुनो कि वर्नियर कैलिपर्स किस प्रिंसिपल पर काम करता है। लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल माइनस लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज always constant and this difference is known as vernier constant or least count of vernier calipers। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को या इस प्रिंसिपल को या इस डेफिनेशन को नोट करेंगे। तो लीस्ट काउंट क्या है? लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल माइनस लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। लीस्ट काउंट को वर्नियर कांस्टेंट भी कहते हैं। तो वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल कितना पढ़ रहा था? देखो, मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू थी 0.1 और वर्नियर स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू थी 0.09। तो यहाँ पर हम ये वैल्यूज रख देते हैं। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल 0.1 माइनस वन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल 0.09। तो अगर हम डिफरेंस निकालें तो ये आ जाता है 0.01 सेंटीमीटर। तो जो वर्नियर कैलिपर्स मैं यूज कर रही थी उसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है और मोस्टली लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स यही होता है। लेकिन हमेशा 9 डिवीजन्स इक्वल टू 10 डिवीजन्स का जो कॉम्बिनेशन है वो ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि 24 डिवीजन्स ऑफ मेन स्केल 25 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल के बराबर हो। ऐसी भी वैल्यू तुमको देखने को मिल सकती है, पर नॉर्मली द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड द स्टैंडर्ड मेजरमेंट इज दैट 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल आर इक्वल टू 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल और उससे फिर हमको लीस्ट काउंट मिलता है 0.01 सेंटीमीटर। तो अब हम सबसे पहले इस पूरे कैलकुलेशन को ढंग से नोट करेंगे और फिर इसको जनरलाइज करेंगे। सबसे पहले हम प्रिंसिपल नोट करेंगे। और उसके बाद ये कैलकुलेशन नोट करेंगे। अब हम एक डेरिवेशन समझेंगे। डेरिवेशन है एक्सप्रेशन ऑफ लीस्ट काउंट। ये जो तरीका है इसका एक शॉर्टकट निकालते हैं हम लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने का। वो शॉर्टकट हम इस कैलकुलेशन को ही जनरलाइज करके निकालेंगे। तो कैसे जनरलाइज करते हैं वो ध्यान से देखो। लेंथ ऑफ 10 डिवीजन्स ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ 9 डिवीजन्स ऑफ मेन स्केल। तो अगर हम 10 डिवीजन्स की जगह n अल्फ़ाबेट का यूज़ करें, ये 10 भी हो सकता है, ये 25 भी हो सकता है, ये कोई और नंबर भी हो सकता है, जनरल कुछ भी। तो इंस्टेड ऑफ 10 आई विल राइट हेयर n। लेकिन 10 डिवीजन्स 9 के बराबर थे लेंथ में, तो हम n डिवीजन्स को 10 से 1 कम 9 है तो हम n से 1 कम n-1 लिख सकते हैं। तो instead of specifying 10 and 9 we can write that length of n divisions of main vernier scale is equal to length of n-1 division of main scale। तो जहाँ जहाँ 10 है वहाँ पे n आ जाएगा और जहाँ जहाँ 9 है वहाँ n-1 आ जाएगा।
तो यहाँ भी n-1 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ देखो, यहाँ भी n-1 आ जाएगा। अब एक डिवीज़न की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी 0.1 सेंटीमीटर। इसको भी हम जनरलाइज करके स्पेसिफाइड ना करें 0.1 और लिख सकते हैं x सेंटीमीटर। तो जहाँ 9 था वहाँ n-1 लिखा है, और जहाँ 0.1 था वहाँ x लिख देंगे। तो जो यहाँ पर वैल्यू आएगी वो आ जाएगी n-1 इंटू x। तो यहाँ पर 0.9 की जगह पर n-1 इंटू x हो जाएगा, और 10 की जगह n हो जाएगा। ठीक, तो लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल आ जाएगा इतना, और लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल कितना है x। तो जब हम लीस्ट काउंट निकालेंगे तो हमने क्या किया था, मेन स्केल के एक डिवीज़न से वर्नियर स्केल के एक डिवीज़न की वैल्यू सब्ट्रैक्ट की थी। तो मेन स्केल का एक डिवीज़न जनरल केस में है x, और वर्नियर स्केल के एक डिवीज़न की वैल्यू जनरल केस में है n-1 x/n। तो यहाँ पर माइनस करके n-1 x/n कर देते हैं। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसको आप ओपन करो, तो x, फिर ये n/n 1 हो जाएगा, तो माइनस ब्रैकेट में n/n हो गया 1 माइनस 1/n माइनस 1/n, और साथ में ये x। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करें अगर देखो, तो यहाँ पर इसको ब्रैकेट को ओपन करो तो तुमको मिलेगा x माइनस x/n। देखो x माइनस x/n। अब x तो चला गया, आपके पास माइनस नहीं बेटा, ये प्लस, तो आपके पास जो एक्सप्रेशन बचा वो बचा x/n। x/n क्या आया, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। अब ध्यान से देखो कि हमारा x था क्या, x था वन डिवीज़न ऑफ मेन स्केल, और n क्या था, n था नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल। तो हम लीस्ट काउंट की जनरल वैल्यू, जो कि शॉर्टकट है लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने का, वो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जो लीस्ट काउंट की वैल्यू हम लोगों ने डिराइव करी वो थी x/n, जहाँ x था वैल्यू ऑफ वन डिवीज़न ऑफ मेन स्केल, और n था नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल। तो हमने लीस्ट काउंट का एक्सप्रेशन फाइनलाइज किया। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल। तो इस तरीके से हम लोग जो लीस्ट काउंट का एक्सप्रेशन जनरल डिराइव करते हैं, इसको अगर हम ढंग से लिखें, यहाँ तो मैंने तुमको यही समझाया, लेकिन अगर हम ढंग से लिखें तो वो इन स्टेप्स में एक्सप्रेस होगा। अब बेटा नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्नियर कैलिपर्स को यूज़ करके सिंपल पेंडुलम के इस बॉब का रेडियस कैलकुलेट करेंगे, मेज़र करेंगे,
और इस तरह से हम लोग वर्नियर कैलिपर्स को यूज़ करना सीखेंगे।